getting getting thirsty, ओके and रुको बेटा रुको. I am the reason why all the river are depelled. All the stream no long flow, no long flow. All the seas are, all the oceans are devolved of HO, volumes of water. No, there is any water, no a drop is left to drink. Now to drink, cause I left the fetcher running and it all went down the snake can't whispered. ओके तो और कोई बच्चा रीड करेगा अगेन इसको. एकमप्रीत. गुरमन किधर है भाई? वेयर आर यू गुरमन? हाँ जी बेटा स्टार्ट रीडिंग अगेन. बेटा माइक पर ऑन करो पहले. माइक पर क्लिक करो. माइक पर क्लिक करो. आपका माइक बंद है. Both my parents told me not to, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well ran dry. Today, not a drop is in the river. The sea is completely dry. Everybody everybody getting thirsty, and I am the reason why हाँ जी रीड करो भाई. गुरमन आपकी आवाज नहीं आ रही. गुरमन आप रीड करोगे? पीछे आवाज नॉइज बहुत आ रही है आपकी. all the rivers are developed at the streams not longer flow. All the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are developed of H2O. No, there is not any water. No, not a drop is left to drink. Cause I left the second drinking uh, and it all went down the sink. ओके थोड़ी सी मिस्टेक थी. चलो वेरी गुड. आपने बहुत अच्छा रीड किया. और कौन बच्चा रीड करेगा? हु विल रीड द नेक्स्ट? करणवीर. सुखजोत. सुखजोत आप रीड करोगे? अच्छा थोड़े से मैं आपको मिस्टेक बता दूं. जो बच्चे ना कुछ वर्ड को मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं. ये है कि हाँ जी सुनो बेटा लिसन. एक तो रिजर्वॉयर ये वर्ड आप गलत रीड कर रहे हो. एक है डिप्लीटेड. थर्ड इज स्ट्रीम्स डिवॉइड. और ये लास्ट वाला जो है फॉसेट. तो फॉकेट नहीं बोलना फॉसेट. ठीक है. और कौन रीड करेगा दोबारा? फिर मैं बाद में ना इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डीपली. Both my parents told me to, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well rank dry. Today, not a drop is in the reservoir. The lake's completely dry. Everybody's getting thirstier, and I am the reason why all the rivers are depleted, all the streams no longer flow, all the seas and floods and all the oceans are devoured of
hydrogen. No, there is not any water, not a drop is left to drink, cause I felt the soft running and it all went down the sink. ओके, और कोई बच्चा कोई रीड करेगा? जशनप्रीत, अर्गुन, अर्गुन आप रीड करोगे? Yes, sir. चलो रीड करो। Both my parents told me not to, but I did it anyway. Now your water tank is empty and the well ran dry today. Not a drop is in the reservoir. The lake, the lake completely dry. Everybody's getting pressure, and I am the reason why all the rivers are depleted. All the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are devoid of H2O. No, there is not any water. Not a drop is left to drink. Yes, I left the faucet running and it all went down the sink. बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है बस, जो लास्ट वाला वर्ड आपने जो रेड है ना वोकेबलरी वर्ड है, फॉसेट है ये, ठीक है? फॉसेट रीड करना है इसको। और कौन बच्चा रीड करेगा बेटा? सीरत, गुरसाहिब, करोगे बेटा रीड? सुखप्रीत, एकम, साहिब जोत। Yes, sir. बेटा अपने कैमरे ऑन करो सब बच्चे, मुझे दिखने चाहिए आपका फेस। चलो भाई जल्दी रीड करो, हरी आप, वन बाय वन। सीरत आप रीड करोगे बेटा? रीड करने के बाद बेटा अपना माइक बंद कर दिया करो। Okay, sir. Both my parents told me not to do, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well ran dry today. Not a drop in the reservoir. The lake completely dry. Everybody getting thirstier, and I am reason why. All the rivers are depleted. All the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are devoid of H2O. No, there is not any water. Not a drop is left to drink. Cause I was running and it all went down the sink. ओके नेक्स्ट वन, ये सहजप्रीत कौर आप रीड करना चाहते हो बेटा? सहजप्रीत कौर, सहजप्रीत कौर। और नेक्स्ट हरमीत सिंह, हरमीत सिंह आप रीड करना चाहते हो बेटा पोइम? हरमीत सिंह बेटा सबसे मैंने रीड करवानी है पोइम वन बाय वन। ओके गुरमान आप रीड करोगे बेटा? Yes, sir. करो फिर स्टार्ट। Both my parents told me not to, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well ran dry today. Not a drop is in the reservoir. The lake's completely dry. Everybody getting thirstier, and I am the reason why all the rivers are depleted.
and the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are devoid of H2O. No, there isn't any water. Not a drop is left to drink. Cause I left the faucet running and it all went down the sink. ओके वेरी गुड। और नेक्स्ट साहिबजोत आप रीड करोगे बेटा? Both my parents told me not to, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well ran dry today. Not a drop is in the reservoir. The lake completely dry. The lake, everybody getting thirstier, and I am the reason why all the rivers are dep- depleted. All the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are devoid of H2O. No, there is not any water. Not a drop is left to drink cause I left the faucet running and it all went down the sink. बेटा मैं 2-3 बार बता दिया, वैसे आप ना फिर गलत रीड कर रहे हो, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ये फॉकेट नहीं है, फॉसेट है, ठीक है? फॉसेट रीड करना स की साउंड से। और कौन बच्चा रीड करेगा भाई? ब्रायन जोत? Yes, sir. चलो Yes, करो sir. रीड फिर। Both my parents told me not to, but I did not. But I anyway, no, our water tank is empty and the well ran dry today. Not a drop is in the river. The reservoir, the lakes completely dry. Everybody getting thirsty. And the reasons why all the rivers are developed. All the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are divided of H2O. No, there is stand any water. Not a drop is left to drink. Cause I left the picket running and it all went down the sink. थोड़े से वर्ड आपने गलत प्रोनाउंसिएट किए बेटा। एक तो रिजर्वॉयर और नेक्स्ट डिप्लीटेड है बेटा, ध्यान से रीड करो। एक है स्ट्रीम और उसके बाद है डिवॉइड और फॉसेट। चलो और कौन रीड करेगा? ये हैंड्स अप किए हैं इन बच्चों ने। सहजप्रीत बेटा हैंड्स अप किए हैं तो फिर रीड करो, हैंड रेज किए हैं। मुस्कान पाल आपने रीड करना बेटा। Both my parents told me not to, but I did it anyway. Now our water tank is empty and the well ran dry. So not a drop is in the reservoir. The lake's completely dry. Everybody's getting thirstier, and I'm the reason why all the rivers are depleted and all the streams no longer flow. All the seas and all the oceans are devoid of H2O. No, there is not any water. Now a drought is left to drink, cause I left the faucet running and it all went down the sink. ओके ओके वेरी गुड बेटा। तो अभी चलो रीड करते हैं फिर। बोथ माई पेरेंट्स टोल्ड मी नॉट टू बट आई डिड इट एनीवे। कि जो दोनों ही मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा तुमने नहीं करना, बट फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है? बट आई डिड इट एनीवे, पर उसने क्या कर दिया? नाउ आवर वाटर
टैंक इज एम्प्टी एंड द वेल रेन ड्राई टुडे, कि जो हमारा पानी की जो टैंकी है वो अब खाली हो गई है, एंड द वेल रेन ड्राई टुडे, और जो हमारा पूरा वेल है, वेल मतलब आपका खूह होता है बेटा, वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, द लेक्स कंप्लीटली ड्राई, एवरीबॉडी इज गेटिंग थर्स्टियर, जो लेक हैं, जो नदियां हैं, वो झीलें हैं, वो भी सब सूख गई हैं। ड्राई मतलब सूख जाना। एवरीबॉडी गेटिंग थर्स्टियर, हर कोई अब प्यासा हो गया। थर्स्टियर प्यास लगना। एंड आई एम द रीजन वाई ऑल द रिवर्स आर डिप्लीटेड। अब वो कह रहा है कि सारी जो नदियां खत्म हो गई हैं, सूख गई हैं। डिप्लीटेड मीन खत्म हो जाना, सूख जाना, उनका रीजन मैं हूं। आई एम द रीजन वाई ऑल द रिवर्स आर डिप्लीटेड। ठीक है, अब ऑल द स्ट्रीम्स नो लॉन्गर फ्लो, ऑल द सीज एंड ऑल द ओशियंस। अब क्या हो गया है, कोई भी नदियां, स्ट्रीम्स होती है बेटा नदी, कोई भी नदी फ्लो नहीं करती है, और ऑल द सीज एंड ऑल द ओशियंस, ना ही कोई दरिया बह रहे हैं, ना ही कोई समुद्र है, सब कुछ खत्म हो गया है। आर डिवॉइड ऑफ H2O। बेटा पानी का फार्मूला पता आपको? पानी का फार्मूला पता आपको क्या होता है? एनीवन नो बेटा? साइंस में पढ़ा आपने बेटा? एनी स्टूडेंट? किसी को पता बेटा पानी का फार्मूला क्या होता है? गुरमन, गुर साहिब, हाँ जी बेटा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, H2O ये होता है फार्मूला। ठीक है, ओके। आर डिवाइड ऑफ H2O, कि जो नदियां हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, झीलें हैं, हर जगह ये H2O खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है। डिवाइड मीन्स खत्म हो जाना। ठीक है, नो देयर इजंट एनी वाटर, नॉट अ ड्रॉप इज लेफ्ट टू ड्रिंक, पानी की एक बूंद तक भी नहीं बची है पीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉज आई लेफ्ट द फॉसेट रनिंग। फॉसेट होता है बेटा टैप, जो हमारे घर में टूटी होती है ना, उसको फॉसेट भी कहते हैं, टैप भी कहते हैं। ठीक है, कॉज आई लेफ्ट द फॉसेट रनिंग, कि मैंने जो टूटी चलती छोड़ दी, उससे सारा पानी टैंकी से भी खाली हो गया, झीलें, लेक, सब जगह खाली हो गया। एंड ऑल वेंट डाउन द सिंक। सिंक हमारा होता है ना बेटा, वेस्ट जहां पानी जाता है, ठीक है, वहां उसको सिंक कहते हैं। तो उसमें सब पानी चला गया है, तो अब कोई भी पानी जो है पीने के लिए नहीं बचा है। ठीक है बेटा, क्लियर आ गई? सभी को समझ आ गई बेटा ये पोइम? अब क्या मीनिंग था इसका? यस सर। कोई वर्ड हो बेटा, किसी को किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो? जैसे ये रिजर्वॉयर का मीनिंग पता बेटा आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिजर्वॉयर? रिजर्वॉयर का मीनिंग पता बेटा किसी को? यस सर। क्या होता मीनिंग? बोलो भाई, कोई बात नहीं, गलत बोलो, मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, डोंट वरी। और लेक फॉर और लेक वन बाय वन। हाँ नहीं, सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा और में। लेक फॉर हाँ जी बेटा, ये तो आप लिखा, ये तो आप लिखा पढ़ रहे हो ना। मीनिंग आप हिंदी पंजाबी में पता है मीनिंग आपको रिजर्वॉयर का? हिंदी पंजाबी में बेटा मीनिंग होता है जहां पर हम पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है सर, जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं। हाँ जी, साम के रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम यूज कर सकें। ठीक है जी, आपने में भी साइंस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पढ़ा होगा कि पानी को कैसे संभाल के रखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, फिर उसको। ठीक है, तो वो होता है रिजर्वॉयर।
और जो ये वर्ड है डिप्लीटेड, वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है? डिप्लीटेड मतलब इसका भी मीनिंग खत्म हो जाना होता है, और डिवॉइड का मीनिंग भी मतलब कोई चीज गायब हो गई है, खत्म हो गई है, बिल्कुल अलोप हो गई है। ठीक है, तो फॉसेट का मीनिंग आपको क्लियर ही है कि ये टैप होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अब आपने बेटा इसके ना डिफिकल्ट वर्ड आपने फाइंड करने हैं, वो आपने लिखने हैं, आपने वर्ड मीनिंग लिखनी है। वर्ड मीनिंग आपके जो है फर्स्ट है एनीवे। एनीवे मींस डूइंग समथिंग विदाउट रियली केयरिंग अबाउट द रिजल्ट। एनीवे मतलब कुछ भी ऐसा काम करना रिजल्ट पर, नतीजे की परवाह किए बिना। ठीक है, उसको कहते हैं कि एनीवे, कैसे भी मर्जी भी काम होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वायर अ टैंक और लेक फॉर स्टोरिंग वाटर, कोई ऐसा टैंक या लेक जहां पर पानी स्टोर किया जाता है। थर्ड वन इज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मीन यूज्ड अप, मतलब यूज कर ली गई है चीज कोई भी और खत्म हो गई है। ठीक है, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मीन स्मॉल बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर। स्ट्रीम्स मतलब नदियां जहां पर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जहां पर पानी फ्लो करता है। ठीक है, डिवाइड बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी। डिवॉइड मीन्स कोई ऐसी चीज जिसका होना जरूरी है बट वो खत्म हो गई है, अब वो मिल नहीं रही है। ठीक है, बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी। H2O वाटर, फॉसेट होता है टैप। ठीक है भाई, वर्ड मीनिंग क्लियर है बेटा सबको? इज इट क्लियर बेटा सबको वर्ड मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो अब ना इसके हम डिफिकल्ट वर्ड कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, तो फर्स्ट हम करेंगे बेटा डिफिकल्ट वर्ड, इनमें से कंप्लीटली कर लो आप, फर्स्ट ईयर कर लो। ठीक है, और क्या हो सकता है डिफिकल्ट वर्ड? ओशियंस। ठीक है, इसके बच्चे इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं। रनिंग लिख लो। ठीक, तो ये आपके इसमें रीजन हो सकता है डिफिकल्ट वर्ड आपके लिए। और आपको क्या डिफिकल्ट वर्ड लगता है इसमें? और कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता हो बेटा तो वो आप इसमें से लिख सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि आप कंप्लीटली, थ्रस्टियर, रीजन, ओशियन और रनिंग, इनको टिक कर लो। ये आपने घर पर अब कंप्लीट कर लेना, वर्ड मीनिंग प्लस इनके ये डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है बेटा, और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको ना पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. तो और कोई बेटा किसी तरह का कुछ आपको डाउट हो, कुछ आपने पूछना हो इसमें, कोई लाइन आपको समझ ना आई हो बेटा, तो अभी मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं ना होती, आपको पॉइंट समझ नहीं आती है, तो आपको क्वेश्चन आगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लो अपने सर फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करके समझ नहीं आई हमें। कौन सी लाइन बेटा? सर फर्स्ट 2 लाइन्स, नाउ आवर वाटर टैंक इज। हाँ जी, सुनो भाई, देखो ना, बोथ माई पेरेंट्स टोल्ड मी, कि जो मेरे दोनों पेरेंट्स थे, माता पिता थे, दोनों ने मुझे कहा नॉट टू मतलब तुम ये काम मत करना। ठीक है, बट आई डिड इट एनीवे, बट फिर भी मैंने वो काम कर दिया। ठीक है, और वो क्या था कि उसने वो जो टैप चल रही थी वो छोड़ दी थी, जिसके रीजन की वजह से सीज, ओशियंस, ये स्ट्रीम सब कुछ खाली हो गया, टैंक भी खाली हो गया और वेल भी, सब कुछ डिवाइड हो गया पानी से। ठीक है बेटा, और कुछ? नो सर। और किसी को कुछ डाउट हो बेटा? एनीवन? नो सर। क्लियर है बेटा सबको? ओके, गुरमन, इन सब बच्चों की बेटा अटेंडेंस लगाओगे आप? इन सब बच्चों के रोल नंबर नोट डाउन करोगे आप? गुरमन नोट डाउन करो। गुरमन? यस सर।
नोट डाउन करके ना मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देना बाद में, ठीक है? डाउन कर लो जो प्रेजेंट है। अभी 27 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। तो अभी बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होनी है? टाइमिंग पता आपको? यस सर। नेक्स्ट क्लास कब है? साइंस की 11:55 पे 11:55 पर है। यस सर। सर चलो अभी हमारे सर पास कईयों ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा। सर कईयों ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा। मैं देख लूं। ओके सर। ये बच्चे जिनका भी रोल नंबर आपको नोट डाउन हो रहा है कर लो बेटा नोट डाउन, ठीक है सबके? और अभी चलो अभी बेटा आप ना ऐसे करो, जो हमने पंक्चुअलिटी मिला था ना आपको, लिसन बेटा, पंक्चुअलिटी मिला था आपको, वो आप जल्दी मुझे सुनाओ, ठीक है? रीडिंग लो फटाफट, 2 मिनट में रीडिंग लेके सुना दो मुझे। पैराग्राफ मिला था ना बेटा आपको हॉलीडे होमवर्क में? यस सर। हाँ जी, वो सुना दो मुझे फटाफट। आपको वैसे लर्निंग है, ये हमने क्लास में भी टेस्ट लिया था आपका। सो जल्दी जल्दी रीडिंग लो, फटाफट सुना दो मुझे। सर टोटल कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं? टोटल इसमें है 5, मैंने तो पिक किया। ओके सर। चलो बेटा हरी अप, टेक रीडिंग। सर हो गया लर्न। हाँ जी बेटा, यस हो गया लर्न। चलो सर, सुनाओ हो गया बेटा लर्न। बैठ के अपना। और जब सुनाते वक्त आपने ब्रेविया बंद करके ना अपने अपनी चेस्ट के साथ रख लेना, और मुझे दिखना चाहिए कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। ब्रेविया एक हाथ में अपनी चेस्ट के साथ रख लेना, फिर सुनाना है आपने। चलो बेटा, who's the first one who will start? अभी कौन बच्चे थे जो भी आवाज दे रहा था सुनाने के लिए? अवनीत, मुस्कान, हरगुन, गुरसाहिब, सुनाओगे बेटा? सर हाँ जी, गुरनिमरत, punctuality means to be prompt with respect of time. It means doing all work on time. Punctuality is a key of success. Whether it is school or home, punctuality should be maintained. A proper बेटा कैमरा ऑन करो, consideration. आपकी पिक्चर नजर नहीं आ सर रही। कैमरा कैमरा ऑन हो नहीं रहा। सर हम ट्राई कर रहे हैं। ओके।
ये जब ऐप चलाते हैं ना तो स्टार्टिंग में परमिशन देनी पड़ती है कैमरा की, मे बी आपने या उस वक्त परमिशन नहीं दी फिर। चलो कोई नहीं, एक A बार सुनाओ proper फिर। consideration of value of time inspires the habit of punctuality. It makes a person confident. If you do not respect time will as well. The punctuality is one of the way to respect others' time. It is the duty of everyone to respect time. Sir, ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश। और कोई स्टूडेंट सुनाना चाहता हो बेटा? जगजीवन। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू। कौन है? सहजप्रीत। yes sir. चलो कंटिन्यू कर। Punctuality with the time is all time. Punctuality is the success, whether it is school or home, should be a proper time. Punctuality is a key of success. Of the day we do not बेटा आवाज आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। सर हम सुनाए। हाँ जी, आप स्टार्ट करो। कौन? Sir, सहजप्रीत। हम कौन? सर सर चलो ठीक है बेटा, आप ये लर्न कर लेना। मैं ये आपको अब नेक्स्ट वाला आपका लॉन टेनिस है ना बेटा, नेक्स्ट वाला? यस सर। तो ये भी मैं आपको रीड कर देता हूँ, ये भी आप लर्न कर लेना, ठीक है? ओके समझ लो बेटा। yes sir. हाँ जी। लॉन टेनिस इज अ रॉयल गेम। पहले ना हमने ये जो लिखा, वैसे तो हमारी ये ना वैल्यू पॉइंट्स होते हैं बेटा, इनको कवर करना होता है। वैल्यू पॉइंट इन सेंस कि जैसे उन्होंने हिंट्स दिए हैं, लॉन टेनिस है, फेवरेट गेम है, कैन बी प्रैक्टिस रेगुलरली, तो ये सब बातें जो इनको ऐड करना होता है। अ बिट एक्सपेंसिव है, रॉयल गेम है, नो फिजिकल हार्म, एवरीवन लाइक सच गेम्स, इंटरेस्टिंग गेम्स। तो ये आउटडोर गेम लॉन टेनिस के बारे में, ये आपने ये वैल्यू पॉइंट्स इनको जरूर ऐड करना, मतलब इनको एक्सप्लेन करना है। ये एक तरह से छोटे से क्वेश्चन है, इन पर जरूर लिखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लॉन टेनिस इज द रॉयल गेम एंड इट इज माय फेवरेट गेम। जो लॉन टेनिस है ये एक रॉयल गेम है, बड़े लोग खेलते हैं, और ये मेरी फेवरेट गेम है एज वेल। इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, ये थोड़ी सी महंगी है। एक्सपेंसिव है मींस इसके लिए आपको ग्राउंड चाहिए, जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आप इसके लिए यूज होते हैं, तो ये कॉस्टली है। एज यू हैव टू मेंटेन द कोर्ट, इसके लिए आप प्रॉपर कोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। एंड द रैकेट, इसके लिए स्पेशल रैकेट यूज होते हैं। विच इज आल्सो एक्सपेंसिव, जो कि वो भी काफी महंगे हैं। इट इज प्लेड एज अ सिंगल एंड डबल, आप अकेले भी खेल सकते हो और डबल्स में भी खेल सकते हो, किसी प्लेयर के साथ भी खेल सकते हो। एंड इट शुड बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड अलर्ट, ये आपको एकदम स्ट्रॉन्ग और अलर्ट बनाती है। इट इज अ गुड एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट्स, ये जो आपकी रिस्ट होती है बेटा, कलाइयां होती है ना, आपका हाथ है, इसकी अच्छी एक एक्सरसाइज है। एंड आईज, आंखों की भी अच्छी एक्सरसाइज है। देखो जब आप खेलते हो आपकी आईज मूव करती है ना बॉल के साथ, आप देखते हो ना फटाफट आपकी बॉडी मूव होती है, ठीक है? तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। इट कैन बी प्लेड थ्रू आउट द ईयर्स, पूरा साल कभी भी आप, जब आपकी मर्जी हो आप ये गेम खेल सकते हो। एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है। मोर इट गिव्स माइल्ड एक्सरसाइज टू आवर बॉडी पार्ट्स, ये ज्यादातर मोर कुल मिलाकर ये आपकी बॉडी को अच्छी एक्सरसाइज देती है, ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। और Yes, sir. देखो अब आप अपने आप रीड करो, ठीक है? अपने आप रीड करो माइक ऑन किए बिना, और देखो कोई लाइन आपको नहीं समझ लग रही तो फिर मुझसे पूछ लो।
कोई वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा तब मुझसे पूछ लो आप, ठीक है। रीड करो अपने आप। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में आप देख लो, आपको कुछ कोई चीज भी आपको क्लियर नहीं है, कोई लाइन कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लेना, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में पूछ लो आप।